going to eat my way through the Hanoi city for the next 50 hours. Hello! My ultimate 50 hours food guide to Hanoi. This is a brand new video wherein I'm gonna be trying the iconic egg coffee to Michelin star fest. From sizzling train street food to delicious night market bites. I ate my way through Hanoi, discovering sweet and savory breakfast sometimes to hidden alleys. I tried a lot of desserts, drinks and legendary eats locals swear by. So if you're planning your next Vietnam trip, this is your perfect guide to everything you must eat, drink and experience in 50 delicious hours. It's so hot, piping hot. बहुत अच्छा लग रहा है. कुछ भी बोल यार. Indian food is Indian food. I mean, wherever in Vietnam, it's so humid and hot, you have to start your any itinerary trip with ice cream or something chilled. So I'm trying a yogurt ice cream. Outside Nok Sun Temple. बहुत iconic spot है. पूरा ground है, lake है, उसके बीच में temple है. We'll go there, but first ice cream. Yogurt ice cream is a different flavor. It's nice. Sweet and tangy. धूप है यार. हम लोग मस्त जगह है. ठीक है. जैसा जागो ये टेम्पल का आपका प्राइस है 2 लाख डाउन, जिसमें 4 दिन का एडमिशन हो जाएगा. हम लोग इस जगह पे हैं और ये ब्रिज से हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये मंदिर है. बाबा कितना धूप है. भाई धूप बहुत ज्यादा है यहाँ पे, गर्म तो बहुत है. ओ बीच में फोटोग्राफी. This is basically the night market. अभी बन जाएगा रात को. अभी फिलहाल हम इधर एक बॉक्स की खा लेंगे. That sauce is not at all interested in selling the food to me. But ठीक है, मैंने फिर भी जबरदस्ती ले लिया because भूख लगा है. Very tasty grilled sausage. ऊपर से स्पाइसी पाउडर में ऊपर स्प्रिंकल करवाया है और एक स्पाइसी सॉस. गुड. उस टाइम यहाँ बहुत गर्मी है तो बाहर ही आपको ये वियतनामी छाता मिलेगा, इसको ले लीजिएगा. पंखा है, छाता नहीं. पंखा. हमारा ये घूमना फिरना हो चुका. अब हम जाएंगे खाने पीने. सबसे पहले हम पियेंगे कॉफी, जो पी के मुझे बिल्कुल भी मेरी नींद नहीं उड़ रही है. बट फिर भी हम still gonna give the next coffee a try because वो हानोई में ही इन्वेंट हुआ था and that's special in Hanoi which is egg coffee. So now let's go. So this is Cafe Dinh जो ऊपर है, नीचे भी ऊपर भी है. They are the only family who introduced egg coffee in Hanoi and the family is still running this space. Cafe Trung बोलते हैं egg coffee को. वैसे तो egg coffee आपको हो ची मिन हानोई हर जगह मिल जाएगा, but this is the first place and the original place. अभी मैंने अपना egg coffee ऑर्डर दिया है. यहाँ पर इनका एक बालकनी है, यहाँ से आप चाहो तो फोटो क्लिक करा सकते हो. पीछे वो आपको लेक जहाँ से हम अभी आए हैं वो पूरा दिख रहा है. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से व्यू. But yeah, I am here to try the egg coffee, so let's go. Oh, this is so pretty. This is so cute. This is so cute. This is the egg coffee. यहाँ पर egg coffee hot cold दोनों में मिलेगा. egg chocolate भी मिलेगा आपको hot cold में, but मैंने यहाँ पर लिया egg coffee cold because बाहर already बहुत गर्म है. I cannot intake anything hot currently right now. अभी 36 डिग्री चल रहा है. Can you believe it? It's 4:30, 5 o'clock and 36 degrees the temperature. Well, उसमें ये definitely going to soothe me up. So you can see a very nice creamy eggy froth on top. This is a sweet eggy froth like a creamy custard और नीचे है coffee. So how do you need to do? First I'll taste the coffee, egg coffee. It's so nice, sweet, salty, creamy. और yolk का बिल्कुल taste नहीं आ रहा, but the texture is just like yolk. It's so good. कच्चा एग से बना हुआ एग का टेस्ट आ रहा है. इनका स्ट्रॉ भी कितना छोटा छोटा. यहाँ पर ना सिटिंग टेबल्स आर वेरी स्मॉल क्यूट क्यूट टाइनी वुड का. सो यू सिट कंफर्टेबली लाइक दिस एंड देन जस्ट एंजॉय. सो आई थिंक यू नीड टू मिक्स दिस कॉफी. फिर भी ये फ्रॉथ बहुत ज़्यादा है ऊपर. ओ यस यस, द कलर इज चेंजिंग. सी, इट्स वर्थ विजिटिंग. I don't know the effect of caffeine after it. मेरे को नींद आएगा कि नींद जाएगा, but इसका taste is what. When you are sitting here and taking the first sip, वो जो moment है, that 2-3 सेकंड का moment is like worth trying it. इस कॉफी के लिए तो ये गर्मी भी सह लूँगी. Okay, so when in Vietnam और Hanoi city में ही आपको particularly मिलेगा, you have to sit in this tuk-tuk. This is so cute and very nice, very cute. If I can actually show you, wait. बिट्टू और वरुण जा रहा है. वो बहुत ही प्यारा टुक-टुक है. Very cute tuk-tuk. This is how it looks like, this tuk-tuk. Now for my next destination, I have come to this Michelin star restaurant, which is Cha Ca Thang Long.
to try a very unique dish which is a grilled fish kind of stuff which looks very good. देख के तो बहुत अच्छा लगा with a lot of herbs and all. Super excited, but the interior of this place is so good. So for the next part I have come to this Michelin star restaurant Chaka. Now to eat this dish particularly known as Chaka, which is basically an iconic Hanoi dish. So basically this is made with fish जिसको dill and spring onion के साथ इस तरह से इसको sauté किया हुआ है. Now this fish, I'll mention the name of this fish. ये वाला जो डिश है ना, ये चाका डिश के नाम पे कितना आइकॉनिक है एंड दिस वाज इन्वेंटेड बाय द डुआन फैमिली. तो इस डिश के नाम पे यहाँ पर हानोई का ओल्ड क्वार्टर्स में इस डिश के नाम पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड स्ट्रीट भी है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज दिस प्लेस हैज गॉट Michelin star in 2023, 2024 and 2025. So the right way he told us how to eat. Vermicelli rice ले लिया, we have taken rice noodles, then you take the greens. अच्छा ये बाद में लेना है. पहले what they did, he added little bit of coriander. Now this is Vietnamese coriander. Take little bit of spring onion and this is I think basil or so. All kind of herb he added. उसके बाद chilies. He added the peanut and उसके बाद फिर उसने add किया ये spring onion and dill and उसके ऊपर उसने दिया fish and इसके ऊपर यहाँ पर इनके पास fermented fish sauce है. तो ये जो fish है ना, this is marinated with turmeric, fermented rice, shrimp paste and galangal juice. इस सब डाल के so let's dig in. I've never tried any dish like this. I'll try the fish first. टर्मरिक का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. Just so good, so well marinated, tasting so good. Okay, I'm eating with the wrong chopstick actually. ये cooking chopstick. और इस हर्ब्स के साथ ये खा के बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स ऑयली. हाउ द फिश सॉस जो हमने ऊपर से ड्रिजल किया था ना, जो सॉस सर्टली लाइट, मतलब हल्का ऑयली तो है, सर्टली लाइट लेकिन फ्लेवरफुल है. दिस इज अ मिक्स ऑफ हर्ब्स जिसके अंदर वियतनामीज कोरिएंडर है. दिस इज वेरी गुड. लेट मी टेक मोर फिश एंड द स्प्रिंग अनियन. और डिल की वजह से डिल भी डाला हुआ है तो डिल का फ्रेशनेस बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज अ वेरी नाइस डिश, वेरी टेस्टी. ये एक सेट कॉम्बो था जिसके साथ हमें एक स्प्रिंग रोल भी मिला, वियतनामी स्प्रिंग रोल. लेट्स ट्राई दिस. और इसके साथ ये एक डिप देते हैं कैरेट, विनेगर एंड क्यूकम्बर डाल के. वेल स्टफ्ड फिश स्प्रिंग रोल. इनके मेनू में सिर्फ ये दो ही आइटम है और कुछ भी नहीं है. और हाँ, इनके यहाँ पर फिश हेड सूप भी है. इफ यू वांट यू कैन गिव दैट अ ट्राई. मेनली फेमस फॉर दिस फिश स्प्रिंग रोल. बहुत टेस्टी है. Taste is so refreshing. So I had a great experience. This entire cooking experience and the product, the dish was very unique. Even the taste was also very different to me. मेरे को बहुत मजा आया. If you ever come to Hanoi, definitely give this dish a try if you eat fish. Also, the total bill which I paid was 5,62,000 Vietnamese dong, which comes to 2,200 rupees. Yeah, ये तो बहुत मजा आया. Okay, ये है the famous train street. यहाँ मेरा भाई आया है फोटो खिंचाने के लिए. और यहाँ पर सब लाइन से खड़े हैं. ट्रेन कब आएगा पता नहीं. दोस्तों ट्रेन चला गया. वो ट्रेन वाली वीडियो को देखने को जाके इंस्टाग्राम में देख लो, दिख जाएगा. यहाँ पर अभी हमने लिया है इसी दुकान से एक स्ट्रॉबेरी टी जो पी के खत्म कर दिया है. एक चिकन पॉपकॉर्न लिया था विद सम डिप. व्हाट इज इट? ये वेज स्प्रिंग रोल है. बहुत टेस्टी दिख रहा है. सूखा वेज है. ये तो अंदर राइस कॉर्न है, सब्जी है और राइस है. रेडिश है, रेडिश. अभी फॉर द नेक्स्ट पार्ट आई हैव कम टू द नाइट मार्केट. तो सुबह हम यहाँ पर एक कॉफी वगैरह पीने आए थे. तो दिस इज द नाइट मार्केट. रात को और वीकेंड में ही होता है. मंडे टू फ्राइडे यू वोंट गेट द मार्केट. सो दिस नाइट मार्केट इज वेरी डिफरेंट देन द नाइट मार्केट वी हैव कवर्ड इन थाईलैंड एंड ऑल. यहाँ पर शॉपिंग के लिए बहुत सारा जगह है. कॉफी कल्चर तो है ही. पीपल आर चिल हियर, सिटिंग एंड एंजॉयिंग एंड द वेदर जो भी है, जस्ट सिपिंग ऑन सम कॉफी एंड ड्रिंक्स. एंड वहाँ पर एकदम लाइव कॉन्सर्ट जैसा चल रहा है. chàng trai Tây Nguyên mang dòng máu dung मोरलेस खाना सब वही है. बट मेरे को एक चीज बहुत डिफरेंट दिखा, विच इज द चॉकलेट चीज केक. नाउ देयर इज चीज केक, देयर इज चॉकलेट चीज केक. नाउ देयर चीज केक इज वेरी डिफरेंट. सेवरी बैटर, उसके अंदर उन्होंने चीज क्यूब एंड चॉकलेट क्यूब्स डाला था. एंड दिस लुक्स वेरी नाइस. इसके ऊपर कुछ प्रिंट है और अंडा भी है इसके अंदर. 10 रुपए का कॉइन ही लग रहा है. हाँ, सो या दिस लुक्स अमेजिंग. Wow, I love this. This is so good. Lovely. I love this. I love this. I love this. I think the most fascinating things which I have found in Vietnam trip is this dessert and the drinks.
The chocolate could have melted. It's really good. बाहर का it's savory, but under it's sweet and salty. Salty because of the cheese. नहीं mozzarella cheese है. तो mozzarella cheese का ऐसा कोई taste नहीं है, but ये overall खाने में बड़ा मजा आ रहा है. Very light snack. वही है जो हम लोग उस दिन शॉपिंग मॉल में खाए थे. चीज, केक, चॉकलेट तीनों मिक्स कर दिया था. मेरे को लगा चीज केक का बैटर को ही फ्राई करके दे दिया. अच्छा है, मतलब ठीक है. So I cannot tell you, this is also a very positive shocker for me to know about my personality. कि इस night market में I'm eating more of a sweet and dessert thing rather than the meat and all because too much meat up here. So yeah, I'm super excited to try this. Bro, the weather, उस weather में ये आइसक्रीम बहुत ज़रूरी है. इससे नहीं होगा, ऐसे ही खाना पड़ेगा. This is like a crunchy, fruity wafer. It's so nice. बहुत अच्छा है. मूढ़ी की तरह है. हम लोग उस नाइट मार्केट में नहीं खाए तो चॉकलेट डाल के दिया था वही है. सबना वेफर्स है. बहुत अच्छा. Very nice. इस मार्केट में वैसे तो आपको कपड़ा, जूता, बहुत शॉपिंग का ही हर चीज़ है. वैसे I don't buy anything like clothes also, but you have to buy all these cups, mugs. This is so cute because 150 Vietnamese dong per cup. अभी closing है तो he's giving us in 100 Vietnamese dong. I'm not bargaining much, but the cups are so cute and so Pinteresty. I bought 4. तो कभी आओ तो you can buy. It's amazing. तो ये एकदम end में ना you will get this very reasonable price and amazing quality she has. I bought 2. एक पिकाचू और एक क्यूटसी. So you can also buy it. Okay, so night market में जैसे मैंने आपको बोला, there's a lot of shopping stuff and all and everything. So उसका end में आके and I was craving for some Indian food. Normally whenever I am traveling outside India, I don't feel like or I don't plan to eat Indian food because obviously when in another country eat like a local or eat the food of that country. But I don't know why Vietnam में मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है that I'm not able to eat much of that non-vegetarian food because यहाँ पर beef बहुत ज़्यादा है and all है, तो मेरे को थोड़ा सा हो गया अब. So I was badly craving for Indian food. So I just suddenly bumped onto this place. I don't know how the food is going to be. I'm just hoping कि खाना अच्छा हो. देख के तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है. Let's see. So I've taken garlic naan and I've taken दाल मखनी. दाल मखनी देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है. चिकन टिक्का मसाला मेरे को चिकन कढ़ाई थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, but ठीक है. दाल मखनी looks impressive to me. पापड़ मैंने ठंडा ही कर दिया है पूरा. कुछ भी बोल यार, इंडियन फूड इज़ इंडियन फूड. दाल इज सो हॉट, पाइपिंग हॉट, बहुत अच्छा लग रहा है. बट द टेस्ट आई वुड से इट्स गुड, बिट सॉल्टी, थोड़ा क्रीमी और होना चाहिए था. बट द गार्लिक नान इज़ वेरी गुड. यहाँ पर सैलेड में आपको ना पहले मेरे को लगा बहुत ज़्यादा सैलेड है, बाद में देखा कि नीचे पूरा लेटस वेटस देके दिया हुआ है. इधर का अनियन बहुत अच्छा है. एंड द बेस्ट पार्ट आपको पता है वियतनाम में ना कैलामेंसी बहुत खाते हैं नींबू के तौर पे. सो दिस आर वेरी सिट्रसी ऑरेंजिश लेमन विच टेस्ट गुड. इट इज़ अ वेरी नाइस. ये ड्रिंक्स में बहुत यूज़ होता है ये वाला लेमन. कैलामेंसी का टेस्ट बहुत अच्छा है. लेट्स ट्राई द चिकन टिक्का मसाला. ना ये चिकन टिक्का मसाला को क्या किया है, नॉर्मली आई डोंट नो इन्होंने तंदूर किया भी है कि नहीं. इस पर टमाटर दिया हुआ है. दिस कैन बी अ गुड चिकन ग्रेवी बट नॉट द टिक्का मसाला. बट जो भी है जैसे भी खाने में बहुत अच्छे हैं. एग्जैक्टली वैसा नहीं है जो डिश का नाम है. दाल मखनी में थोड़ा सा स्वीटनेस आ सकता था, लेकिन द बटर नान इज़ वेरी गुड. आई रियली लव द बटर नान. और सब्जी के साथ बहुत टेस्टी लग रहा है. वैसे अगर मैं अपनी बताऊँ, जैसे आई वाज जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. हानोई में यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट, लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट. सोचा था कि इंडियन रेस्टोरेंट के ऊपर आई विल मेक एन एपिसोड, बट देन आई वाज लाइक कि टाइम का शॉर्टेज था. सम टाइम एल्स कभी वापस आने का मौका मिलेगा, देन आई विल ट्राई. बट हाउएवर आप अगर इधर नाइट मार्केट में शॉपिंग करने आ रहे हो तो दिस प्लेस इज गुड बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर क्लोज बाय 10 PM. बट ये खुली है, अभी तो खुली है, 11 बज रहे. अभी ये लेट नाइट खुली है. सो या यू कैन गिव दिस प्लेस अ ट्राई. इनके पास ऑप्शन में बहुत कुछ है. मॉर्निंग में डोसा वोसा वगैरह भी मिल जाएगा. तो या अब अच्छा लग रहा है, खाते खाते अच्छा लग रहा है. सो वी हैड लवली फूड. देखो कैसा लगा इंडियन फूड. हाँ, मतलब यहाँ के हिसाब से अच्छा था, मतलब इट वाज गुड. हम लोग का बिल वो 749 लाख वियतनामीज डॉग, मतलब 2,900 के आसपास, 3,000 के आसपास पकड़ लो. क्वांटिटी बहुत अच्छा था. हमने थोड़ा पैक करा लिया, प्राची रूम में है उसके लिए. द क्वांटिटी इज वेरी सफिशिएंट. हाउएवर द फूड वाज नॉट लाइक द वन, बट यहाँ पर आप और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो आई विल से दिस रेस्टोरेंट यू कैन ट्राई, इट्स वेरी गुड. The next morning. So I'm at this place called King Roti. So there are 2 types of breakfast which starts in the morning in Hanoi. एक savory breakfast, एक sweet breakfast. Savory में you can have porridge, pho and other dishes. And while in the sweet side
You can try out this coffee chocolate roti from King Roti. It's very iconic. It's very fluffy. ये देख के बहुत बड़ा लग रहा है, but it's very soft and fluffy. Yeah, it's very soft. ये fresh आपके सामने bake करके she'll make it. If I can actually show you the chocolate. So ये coffee flavor है with gooey chocolate inside. कितने का था? 80 रुपये. 20,000 dong. It's good. The bun is very fluffy, very soft. It's like a pillow. Pillow soft and also chocolate का जो अंदर जो chocolate cream है बहुत हल्का दिया हुआ है. कॉफी का ऐसा फ्लेवर नहीं आ रहा है. जो बन है उसके अंदर कॉफी का फ्लेवर आएगा. It's good. Okay, so the next iconic breakfast dish in Vietnam which I'm trying is Ban Quan Nong. So basically this is a rice roll. आपने जैसे देखा था बाहर, she was so pro at making this. She was making a rice sheet roll. She was steaming for I think half a minute. And इसके अंदर the stuffing are of pork and mushroom and onion. See, this is how it looks. This rice roll basically I would say shung fong. अगर Chinese version में बोले, there's fried onion and garlic on top. So how to eat? This is the fish sauce or fish dip, whatever you call it as. इसमें you have to add calamansi. Calamansi is the local lemon which you get here. सबको यहाँ पर आपको ये देता है. Squeeze on some calamansi juice, not much. To make it spicy, you can add chilies. Just adding the garlic water a little bit. So taste enhancer. इसके ऊपर then you drop in some black pepper if you want more spicy taste. And वैसे भी you know chilies का spicy and black pepper का spicy are both different. Then there are some mixed herbs which has some Vietnamese coriander, basil and यहाँ का local कुछ herbs है. If you want you can add that as well. You know the soup, I'm not taking this one. I'm taking one of this. I'm taking the coriander. And now simply take your roll, थोड़ा सा इसके साथ fried onion and garlic मिलाते हैं and dip it into this sauce, soup, flavorful, bomb packed soup. And ये बहुत ही ज़्यादा subtly and you know glutinous rice roll. Let's dig in. This is so good. This is so good, Food Fam. This is so good. You have to give this a try. Wow, I love this. I love this. The crunch of the fried onion and garlic. उसके साथ ये soup जब डाल रहे हैं, the moistness, such a blast of juicy, glutinous bite inside your mouth. It's jiggly. And most importantly, it's very light. बाहर इतना गर्मी है, उस गर्मी के लिए ये वाला जो सूप है, this dip is everything you need to beat the heat. Oh wow, what a rhyme scheme. This dip with this rice noodle roll is everything you need to beat the heat. इसको ले रोल को ले, डिप कर. सूप के वजह से टेस्ट है, इसमें तो ब्लैंड है. वो डिप की वजह से ही सारा मजा है. Most iconic dish which is normally available everywhere in India and or dish which is Vietnamese pho. Now it's very hard to find Vietnamese pho because everywhere you will get pho which is beef pho. I don't eat beef, so it was very hard for me to find a pork pho or a chicken pho because I always go and eat at places which are iconic, legendary or street food. But street में नहीं मिल रहा, मैंने बहुत खोजा. It's been 4-5 days of me in Vietnam, but मुझे pho नहीं मिला. Luckily I got this place nearby to my hotel in Hanoi and they serves amazing chicken pho. बहुत सारा review देख के have come. I'll just move this. This is mete. I don't want to eat. This is liver, chicken liver. So this is basically the special pho which we have taken. A very nice, you know, poached chicken और chicken balls है. जो egg होता है ना, chicken का egg, not fully grown egg, छोटा सा egg. And yes, this is the pota, which is the gizzard, chicken gizzard. There's spring onion and herbs on top, like the coriander and all. And then there is this amazing silky smooth rice noodles, which is fab because the slurp is very smooth with the rice noodles. And there is amazing classic translucent, very ब्रॉथी कलर जिसके ऊपर आपको देख रहा है हल्का हल्का सा ये पोस्ट चिकन का ऑयल फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द सूप. दिस इज द वेरी क्लासिक स्टीमी सूप. नाउ लेट्स फर्स्ट टेस्ट द सूप. मैंने इंडिया में जो भी फो खाया ना, गिने चुने एक दो जगह पे, दिस टेस्ट एकदम डिफरेंट, अपोजिट, एकदम टेस्ट डिफरेंट. इसमें बहुत अच्छा यू नो पोस्ट चिकन का जो स्किन ऑफ द चिकन का जो तेल होता है ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. इट इज़ वेरी ग्रीजी सूप, like it's greasy comforting soup. I like this. Condiments में आप चाहो तो ऐड कर सकते हो chilies and you can also add some chili sauce. Add garlic water and salt, pepper, soya dip and everything. What is this? No, this is not soya sauce. Salty. Soya sauce. इसको मिलाते हैं. Salty है, मस्त है. Pho is incomplete without a squeeze of calamansi. Squeeze on this. तो सारा seed इसमें आ जाएगा. The taste of calamansi elevates the taste of the pho way more. I'll add little chili paste. So this is the poached chicken with the beautiful skin. अब टेस्ट अच्छा लग रहा है.
So अब देखो, this are flat rice noodles, not the thin one. This is so good. The flavors are so good. Very nice, very nice. Let's try it with the chicken. I believe the soup is very greasy, steamy soup. So nice, very nice. So comforting. All the food of Vietnam is so comforting and so light on the palate. जितना weather के हिसाब से बहुत perfectly balanced बनाया हुआ है meal. यहाँ का राइस नूडल्स बहुत टेस्टी है खाने में. हम लोगों के वहाँ पर इंडिया में जो पैकेज राइस नूडल्स आता है उसका टेस्ट बहुत चुवी होता है. दिस इज नॉट चुवी, दिस इज परफेक्टली बाउंसी एंड स्लर्पी. टेक्सचर इज वेरी डिलीशियसली चुई, नॉट हार्ड चुई, इट्स वेरी डिलीशियसली चुई. मतलब ऐसा है कि जो ब्रॉथ है इतना अच्छे से सूप में चला गया कि सिर्फ नूडल्स से अच्छा लग रहा खाने में. सो फो मेरे को टिक करना था, खाना था बोल के खा लिया. और ऑल्सो ये वाला जो मैंने फो खाया है मैंने 700 का खाया. सो अभी तक का मैं जर्नी में ये बोलूँगा, वियतनाम इज नॉट सस्ता एट ऑल. यू हैव टू बी रियली कैलकुलेटिव एंड वाइज एंड देन पे मनी. आपको ऐसा लगेगा, आप पकड़ लो 1 लाख मतलब 390. मेरे को जो रेट एक्सचेंज रेट पे मिला 390 का, 1 लाख मतलब 390. सो यू हैव टू रियली थिंक वाइजली और थोड़ा पॉज लेके खर्चा करो, बस ऐसे निकाल मत दो वियतनामीज डोंग को. सो द अनदर थिंग व्हिच यू हैव टू ट्राई व्हेन इन हनोई, द ओल्ड क्वार्टर मार्केट एरिया, व्हिच इज दिस मिक्सुई. आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, मिक्सुई. इट्स अ ब्रांड फॉर फेमस फॉर द आइसक्रीम एंड टी. सो यहाँ पे मैंने लिया एक मैंगो संडे विच इज सो मच नीडेड currently इतना गर्मी में. तो बेसिकली दिस नथिंग बट वनीला आइसक्रीम टॉप्ड विद सम मैंगो सिरप और मैंगो क्या बोलते हैं अपने पल्प दैट काइंड ऑफ. फो के नाम पे एक गली बनाया हुआ है इधर, लेकिन फो नहीं मिल रहा है. चिकन फो, वीगन फो खा लेना. एक जगह है पास में जहाँ हमने चिकन फो खाया, उसके पास में ट्राई द वीगन फो. आई थिंक द वीगन फूड इज वेरी गुड इन वियतनाम. दिस वेरी गुड. द आइसक्रीम वेरी बहुत स्मूथ है, बहुत टेस्टी है. अब द पैकेजिंग ऑफ दिस प्लेस, दिस इज सो क्यूट. दिस इज कैफे मोका, आइस कैफे मोका. इस पे भी आइसक्रीम इन्होंने ऊपर से डाला हुआ है विच इज लाइक फैब. ओह लवली. कैफे मोका विथ आइसक्रीम. दिस इज दी बेस्ट. अंदर ना जेली भी डाला हुआ है, दैट ब्लैक जेली. और ये खाने में इतना अच्छा लग रहा है, कड़वा मीठा, आइसक्रीम का क्रीमीनेस एंड स्वीटनेस, परफेक्ट ब्लेंड. और मुंह में ये जेली आ रहा है. इट्स अ वेरी सॉफ्ट जेली. And the last dish for today's video, I'm going to be trying banh chao, which is a traditional Vietnamese dish. This place जहाँ मैं आई हूँ, this is one of the iconic spots. Legendary food critics have been here. एक grilled pork patty होता है, उसको सर्व किया जाता है with a very flavorful broth and some fresh vermicelli noodles and a variety of herbs and vegetables. फिर मैं खा रही हूँ इसके साथ the Vietnamese spring roll. Let's try it. यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, सारा खाना में ये लोग हर्ब्स बहुत जनरस वे में दे गिव यू हर्ब्स. नूडल्स विद राइस विद एवरीथिंग दे ईट हर्ब्स. ग्रिलिंग में, बारबेक्यू में, हॉटपॉट में, हर चीज़ में. दिस आर द राइस नूडल्स आई लव, थिन वाला, पतला वाला. ग्रिल्ड मीट पैटी इज सो गुड. हमने जो खाया था ना स्प्रिंग रोल, उसके साथ भी यही सूप दिया था. वेरी टेस्टी, वेरी नाइस. हाउ डू एक्सप्लेन यू हैव टू कम हियर, eat by yourself. These flavors are flavors which I have never ate before and they are very 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 classic, very nice, simply comforting. The soup has all the flavors, salty, sweet, savory, tangy and a little bit of spicy. Just tasting so good. इस सूप पे आप इसको डिप करके खा सकते हो. I love this. थोड़ा सा पॉट मीट है, गाजर है, प्याज है, ब्लैक पेपर है. इट्स सो डिलीशियसली सेवरी. और इसके साथ जब ऐड कर रहे हैं इस सूप के साथ, तब बहुत ज़्यादा एक टेस्ट बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जा रहा है. बट दिस इज वर्किंग एज अ वेरी नाइस डिप. बट ये आप स्टैंड अलोन खाओ, इट्स सो नाइस. एंड अंदर राइस नूडल्स का भी दिया हुआ. देखो राइस नूडल्स बहुत अच्छे से कुक हो गए. राइस नूडल्स भी. एंड ये मैदा वाला स्प्रिंग रोल शीट नहीं है, राइस पेपर वाला स्प्रिंग रोल शीट है. तो बहुत क्रिस्पी एंड फ्लेकी है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्प्रिंग रोल आई हैव हैड. अंदर मशरूम सब दिया हुआ है. So good. I love this.